Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss annuities and their future value. Our next topic in exercise chapter number 8, which concerned with exercise 8.3. Now, before starting with annuities and their future value, first of all, you must understand what is annuity. Annuity is actually the series of equal payment. लाइक अगर आप मंथली का पेमेंट कर रहे हैं दैट विल बी द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स. और जो सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स होती हैं वो बार बार फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप कर रहे होते हैं. लाइक $1,000 पर ईयर, दैट मीन्स this amount will be paid after every year for a certain period of time. That will be called as annuity. Annuity को जनरली हम डिनोट किससे करते हैं? Annuity is denoted by capital R. Now there are two types of annuity. Before starting with, so ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं. Annuity, there are two type of annuity. One is called ordinary annuity. Ordinary annuity, and one is called annuity due. So what is the difference in between ordinary annuity and annuity due? There is a very small difference actually in terms of concept. ठीक है? Ordinary annuity, in this type of annuity, the payment will be made after the end of the period, like at the end of the year, at the end of the month, at the end of the semi-annual. So payment will be made after the end of the period, or payment might be if it is a withdrawal, then withdrawal will be made after the end of the period. So this type of annuity where payment will be made after the end of the period we call it ordinary annuity. And the annuity due, the payment will be made at the beginning of the period. Period means it might be year, semi-annual, quarter and so on. So जो बेसिकली आपके पास इन दोनों में डिफरेंस है, वन इज ऑर्डिनरी एन्युटी एंड वन इज एन्युटी ड्यू. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. In this chapter actually we are more concerned towards ordinary annuity. That is why जो तमाम आपके क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, whether वो एडिशनल में हो या आपके एग्जांपल्स में हो, वो it is related to ordinary annuity. एन्युटी ड्यू जो है वहां पर यहाँ डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इनमें. वेल, अगर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट करना चाहूँ फ्यूचर वैल्यू उसकी ऑर्डिनरी एन्युटी की, सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इज द एन्युटी 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. This will be the formula in order to calculate the future value if annuity is given to you. In this case, the future value is equal to what? Is equal to R 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. The formula remains the same till here, and you have to multiply it by what? 1 plus I, because it is from the beginning of the period. That is why this factor will be multiplied by the total future value. So it will give you the total future value. So यहाँ से आप basically
आइडिया ले लें कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी एन्युटी. Now coming towards the annuities and their future value. Annuities and their future value, as it basically obvious from its name, it is a future value. It will comes after certain period of time. The amount, the accumulated amount, which comes after a period of time. Suppose कर लें कि आप जो है, let's say you are going to deposit ₹1000 after every year for the period of 4 years. How much you will get, provided कि the interest will be is 8% per year. Suppose करते हैं हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं. टाइमलाइन का मतलब ये है कि ये बेसिकली 1 year है, 2 year, 3 year, 4 year, और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं that is ₹1000 per year. बुक के अंदर ये एग्जांपल भी कोट की गई है ऑन पेज नंबर 320. सो मैंने भी उसी एग्जांपल्स को लेकर बेसिकली यहां पर सॉल्व कर लिया. 1000. सो फॉर एग्जांपल 1000, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर है, ठीक है, और यहां पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है that is I is equals to 8% per year and it is for the period. So how much you will get after 4 years time? 4 साल बाद आपके पास जो accumulated amount है वो कितनी होगी? एक तरीका तो अगेन यही है कि आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. F is equals to R 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. एक आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसमें पुट करें और कैलकुलेट कर लें, लेकिन आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि ये टाइम लाइन के थ्रू किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि एट टाइम्स कभी कभार कोई डिपॉजिट नहीं हुआ तो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए उसे. सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बेसिकली जो अमाउंट है जो आफ्टर 1 year टाइम आपकी डिपॉजिट हुई है एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर, सो इट विल बी kept on deposit for how many years? 1, 2 and 3 years. Actually this 1000 will be kept on deposit for 3 years time. So अगर आप फ्यूचर वैल्यू आप याद करें कि अगर मैं सिर्फ इस 1000 की बात कर रहा हूं, इस 1000 की, सो ये 3 years के लिए, तो ड्यूरेशन कितना हो गया? 3 years. इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 8% पर ईयर, ठीक है. सो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? सिर्फ इस 1000 की बात करें, फॉरगेट अबाउट दीज 1000, आप जस्ट इसको कैलकुलेट करें. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली क्या आएगा, ये फ्यूचर वैल्यू क्या होती है अगर आप याद करें तो FV इज इक्वल टू PV 1 प्लस I टू द पावर n. प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको याद होगा फ्यूचर वैल्यू हम इसी तरह कैलकुलेट करते थे. दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू which is comes at the end of the first year. So it will kept on deposit how many years? 1, 2 and 3 years. So NB the 3, PV क्या आ जाएगा? Present value 1000. And what about the interest rate? Interest rate is 8%, that is 0.08. So यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? PV 1000 1 plus I that is 0.08 टू दी पावर n कितना आएगा? 3. ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाती है. सो अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास? 1259.7. नाउ कमिंग to the second basically installment, जो second payment है that is $1000 after exactly at the end of the 2 years. Now अगर मैं इस वाले 1000 की बात करूँ, it will be kept on deposit for how many years? Only 2 years. So अगर आप ये आपके पास इनिशियल है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, इंटरेस्ट रेट आपका कितना है? 8%. फ्यूचर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000, यानी ये फॉर्मूले में पुट कर दें 1.08 to the power 2. Again it is equal to 1.08 to the power 2 is equal to this multiplied by 1000. It is equals to 1166.
0.4. Now coming towards the third payment, 1000. Again it is 1000, but it will be kept on deposit for only 1 year. So it is equal to what? It is equals to 1.08 multiplied by 1000. 1080. Now last one, ऑब्वियस है कि यहां तो आपने ये अमाउंट आपके पास एक्यूमुलेट हो गई, सो आपने इसको यहां से विड्रॉ कर लेना है, तो द अमाउंट विल रिमेन 1000, ऑब्वियस है। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले में भी पुट करेंगे तो यही होगा 1000 1.08 टू द पावर 0, इसका मतलब 1 होता है, इट इज इक्वल टू 1000। और ऑब्वियस भी है कि ये अमाउंट, सो टोटल अगर आप इसको देखें तो इन सारी अमाउंट को अगर मैं टोटल करूं 2080 प्लस 1166 प्लस 1259.7, सो ये आ जाएगा कोई अराउंड 4506.1। कोई आप इसको ऐड करके देख लें, कोई अराउंड इतना ही आ जाएगा 4506.1। सो आफ्टर 4 years टाइम एक्चुअली जो आपके पास अमाउंट एक्यूमुलेट होगी, फ्यूचर वैल्यू आएगी, दैट विल बी 4506। देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप कभी हो सकता है ये पेमेंट ना करें, सो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पेमेंट होगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज करूं, FP is equals to R 1 plus I to the power n minus 1 divided by I। इन दिस केस R क्या अमाउंट होती है, जो कि सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट होती है थ्रू आउट द पीरियड। लेकिन अगर यहाँ पेमेंट ही नहीं हुई है तो ऑब्वियसली आप 4 years के लिए यहाँ पर नहीं लिख सकते R को। देन या तो आपको ये सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आप इन सबको एक मर्तबा कैलकुलेट करके ये वाली जो अमाउंट है, यानी जो ये कैलकुलेट की है, उसको उसमें से लेस कर देंगे टोटल में से। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास लिखा होता फॉर 20 years, 20 years में जो 7th पेमेंट थी वो भूल गया, 7th पेमेंट उसने डिपॉजिट नहीं की। इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं, हर साल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक ईयर जो है ड्यू टू सर्टेन रीजन उसने पेमेंट नहीं की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3rd ईयर नहीं पेमेंट की। जब उसने 3rd ईयर पेमेंट नहीं की है तो ऑब्वियसली आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज फॉर द कंप्लीट 20 years। आप इसको ये नहीं कर सकते कि इसको 19 years कर दें। क्यों? क्योंकि हर ईयर का जो वैल्यू है इट इज डिफरेंट। अगर 3rd ईयर पे पेमेंट नहीं हुई है तो 3rd ईयर की वैल्यू डिफरेंट होगी जो 19 years में होगी। सो इसका मतलब है कि आपको एग्जैक्टली इस ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको टोटल में से क्या करना पड़ेगा, लेस। यानी दैट मीन्स अगर मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करूं 20 के ऊपर तो वो पूरे 20 साल कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको 5, 6, 7 अप टिल 20 तक ले जाता इन्हीं पेमेंट्स को। सो होता क्या, होता ये कि 20 तक पेमेंट्स होती, लेकिन मैंने कहा कि ये पेमेंट मैं भूल गया। इसका मतलब है कि अब मैं इस पेमेंट को अलग से कैलकुलेट किया, मैंने तो पता चला ये तो आ रहा है कुछ और, ये तो यहां पर बन जाएगा कोई 617, और इसको जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंट आ रही होगी। आपने उस वैल्यू को उसमें से क्या करना है, लेस कर देना है। यानी यूं समझ लें कि अगर इसी 4 years में मैं कहता हूं कि मेरी ये सेकंड पेमेंट मैंने नहीं की, सो अगर मैं सेकंड पेमेंट नहीं करूंगा तो ये जो सेकंड पेमेंट का टोटल आया है ये इस एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से, कंपाउंड अमाउंट में से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आप इसको सिर्फ 3 नहीं कर सकते, क्या एक पेमेंट नहीं हुई तो इसको 3 years बना दें। 3 years का मतलब हो जाएगा 1, 2, 3, इसकी पेमेंट डिफरेंट हो जाएगी। सो यहां पर जो एग्जैक्ट पेमेंट होगी उसी का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके लेस किया जाता है। इंशाल्लाह अगर कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का आया तो मैं आपको ज्यादा इसको क्लियर कर दूंगा। FV is equals to R 1 plus I to the power n minus 1। अगर मैं इसी के ऊपर ये अप्लाई कर दूं, बजाय इसके कि ये मैं सीरीज ऑफ पेमेंट की अलग अलग सेपरेटली फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करूं, अगर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें,
सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, 1 प्लस आई 1.08 हो जाएगा। एन क्या आ जाएगा, अब एन 1 2 3 4 तो 4 इयर्स है, -1 डिवाइडेड बाय 0.08। इसको कैलकुलेट करते हैं और लेट्स सी कि वैल्यू क्या आती है। सो आप कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 1.08 टू द पावर 4 which is equals to this minus 1 which is equals to this divided by 0.08 which is equals to this multiply by 1000. So 4506.1 exactly same amount आ गई। So आपके पास फ्यूचर वैल्यू क्या आ गया 4506.1, यानी जो आप सेपरेटली एक एक की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया आपने, उसको ऐड करके निकाली। आप चाहें तो डायरेक्टली निकाल लें, और हम जनरली जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की। सो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट अर्न किया आपने। सो देखिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है कितनी, आपने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की है 1000 रुपीज 4 टाइम्स, यानी आपने एक्चुअली 4000 रुपीज इन्वेस्ट किया। फाइनली यू विल गेट $4506, 6.1 रुपीज, जो भी डॉलर्स है या रुपीज है जो भी। सो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यहां पर जो आपकी अमाउंट है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ टाइम्स। यानी अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, फ्यूचर वैल्यू में से, यानी ये जो आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है आफ्टर 4 इयर्स, इसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करें, 1000 माइनस नहीं होगा, बल्कि ये 1000 कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। इसका मतलब है n टाइम्स r, ये माइनस कर देंगे। n टाइम्स r का मतलब 4 टाइम्स 1000। r क्या चीज है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट। कितनी पेमेंट थी, 1000। तो फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4506.1 माइनस 4 टाइम 1000। Now it is equals to 4506.1 minus 4000 which is equals to 506.1 रुपीस और डॉलर्स, जो भी करेंसी यूनिट्स आपको गिवन है। सो आपके पास इंटरेस्ट, आप इस तरह से इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट यहां पर कर लेंगे। Now exercise 8.3 which is actually related to annuities and their future value, on page number 324, page number 324। Now question number 1, again आपको पता है कि इंटायर चैप्टर 8 में आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप डाटा फॉर्मुलेट कर लें, क्योंकि डाटा बनाने से ही आपका 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। आपको एक आइडिया क्लिक कर जाता है कि आप एक्चुअली आपने इसके ऊपर अप्लाई क्या करना है, एंड हाउ यू विल गेट द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो क्वेश्चन 1 से द पर्सन विशेस टू डिपॉजिट $5000 पर ईयर। देखिए इस स्टेटमेंट से जस्ट $5000 पर ईयर, अ पर्सन विशेस टू डिपॉजिट $5000 पर ईयर, फौरन इससे क्लिक करता है कि एक ऐसी अमाउंट है जो कि ईयरली है, डिपॉजिट्स हैं, बार बार होगी, हर साल होगी। पर ईयर का मतलब होते हैं ईच ईयर, एवरी ईयर। सो इट मींस कि ये जो कीवर्ड है, यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये $5000 की अमाउंट क्या गिवन है आपको, एन्युटी, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट, दैट इज $5000 पर ईयर, राइट। इसके बाद क्या गिवन है, इफ इट इज से in a saving account which earns interest of 8% per year compounded annually, again I is equals to 8% per year and it is compounded annually। so ये क्या हो जाएगा,
8% पर ईयर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये ईयर है और यहाँ एनुअल है, इट विल रिमेन सेम, दैट इज सिंपली आप 100 से डिवाइड कर दें 0.08 पर ईयर। इन केस आप याद रहे कि बी रिमेंबर के इफ इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस ईयर इनटू क्वार्टर्स, और उसके लिए क्या कर देते हैं, यस आप उसको डिवाइड करते हैं बाय 4। अगर क्वार्टर है, सेमी एनुअल है तो डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर एनुअल है तो ऑब्वियसली रिमेन्स द सेम। एंड क्या लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन को आगे पढ़ें, assume the first deposit is made at the end of the current year, it means कि ordinary annuity है, and additional deposit at the end of each following year, और आइंदा जितने भी साल होंगे उसमें at the end of the year deposits हो रहे हैं। To what sum will the investment grow at the time of the 10th deposit? देखिए अगर first deposit will be made at the end of the first year, second will be made at the end of the second year, third will be made at the end of the third year, इसका मतलब है कि हर साल के एंड पे आपके डिपॉजिट हो रहे हैं। नंबर ऑफ डिपॉजिट कितने, 10, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, यस 10 हो जाएंगे। सो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। फाइंड आउट क्या करना है, टू व्हाट सम विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो, इसका मतलब है आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, और क्या फाइंड आउट करने कह रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड, और आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट। सो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट FV is equal to R 1 plus I to the power n minus 1 divided by I। R की वैल्यू 5000, 1 plus I that is 1.08, then 1 plus 0.08 1.08 हो जाएगा, n क्या आ जाएगा 10 minus 1 divided by 0.08। सो इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं। सो 1.08 to the power 10 minus 1 equal to this divided by 0.08 equal to this, and it will be multiplied by 5000। सो ये आंसर आ जाएगा 72,432.8 डॉलर्स। सो आपके पास फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई, 72,432। बी रिमेंबर के पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ये वन गो में ये सारा सॉल्व हो सकता है कैलकुलेटर के ऊपर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आफ्टरवर्ड 5000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। आई क्या होता है, जो आपका डिमास का रूल है या बॉडमास का रूल है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू FV माइनस एन टाइम आर। फ्यूचर वैल्यू कितनी आई आपके पास, 72,432.8। अमाउंट कितनी डिपॉजिट की है आपने, अमाउंट 5000 डिपॉजिट की है, कितने टाइम्स, 10 इयर्स, दैट मींस एक्चुअली आपने 50,000 डिपॉजिट किए हैं। सो ये 10 टाइम्स आपने ये डिपॉजिट किए हैं 5000। सो आपके डिपॉजिट कितने हो रहे हैं, 10 टाइम्स आप एक्चुअली 5000 डिपॉजिट कर रहे हैं। सो जब 50,000 माइनस करेंगे, सो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22,432.8 डॉलर्स। This is how you are going to solve this question, and related to this question, basically question 1 till question number in fact 6 तमाम क्वेश्चन सेम है। इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये अमाउंट चेंज होगी और इंटरेस्ट रेट में इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली और कंपाउंडिंग बाई मंथली और monthly, it all depends on the question.